Hello students. Last time we have discussed a chapter that name is power indices or exponents. In that chapter we have discussed that we have law of exponents and basis of 3 to 4 law we have discussed, and also we have discussed some example that are purely based on these kind of formula. For the new user, new student, I'm just going to repeat those laws. We just listen carefully. Whenever there is a, first law is a to the power m into a to the power n equals to a to the power m plus n. That means whenever base is same in multiply, then power should be added. अगर base same हो, multiply हो, then power should be added. And similarly, when base should be same and in division form, then power should be subtracted. Every time whenever power 0 always be equal to 1, then a to the power m is whole power n, then we can say that is a to the power m plus n. And when we concern about the negative powers, so I told you that day, whenever we have a negative power, first we should make it positive. So whenever we are just going to make it positive, it will be a reciprocal. That means numerator term will be in denominator and denominator will come in a numerator. That means a to the power minus m equals to 1 upon a to the power m. That means this is the numerator. Now it convert into a denominator. And right now, if it is in a denominator, it move in the न्यूमरेटर. अगेन जब आपके पास a अपॉन b की फॉर्म हो, सो इन दैट सिचुएशन इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें पूरी टर्म को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. दैट मींस b जो भी डिनोमिनेटर में है इट कम्स इन न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर का a है दैट विल कम इन डिनोमिनेटर. सो द टर्म विल बी b अपॉन a होल पावर m. नाउ इस फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल किए थे. इन एग्जांपल्स का नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. So the next example is, by what number should minus 7 to the power minus 1 be multiplied so that the product become minus 14 to the power minus 1. First of all, हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे. What he wants to say, क्वेश्चन कहता है हम इस पर्टिकुलर टर्म्स को, that means minus 7 to the power minus 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें. बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई. दैट मींस इस पूरी टर्म्स को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सो द न्यू टर्म बिकम दैट इज. सो हम इस न्यू या बाय व्हाट नंबर शुड को अगर हम x कंसीडर करें, तो हम अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं. इफ x इज मल्टीप्लाइड by that minus 7 into the power minus 1 to get the product, that one. So now हम इसे लिखेंगे let x should be multiplied by minus 7 to the power minus 1 to get minus 14 to the power minus 1. That means इस टर्म को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अब मुझे इसे लिखना है x इंटू माइनस 7 टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 14 टू द पावर माइनस 1. नाउ अब आपको वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, x का. सो नाउ वी शुड सॉल्व द इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ नेगेटिव टर्म, सो टू सॉल्व दिस नेगेटिव व्हाट वी डू, वी जस्ट मेक इट पॉजिटिव. और इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसे रेसिप्रोकल किया. दैट विल बी 1, पॉजिटिव पावर 1. अगेन इस टर्म को सॉल्व करने के लिए मैंने अगेन इस माइनस 1 को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया. इज दैट क्लियर. नाउ मुझे x की वैल्यू चाहिए. x इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 7 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 14. इज दैट क्लियर. नाउ if you want to get the value of x, ये जो माइनस 7 है ये अभी अपॉन की फॉर्म में है. ये जब वहां ट्रांसफर होगा तो ये ऊपर जाएगा, माइनस 7 इंटू 1 होगा अपॉन माइनस 14. माइनस से माइनस साइन कैंसिल. 4 अपॉन 7 अपॉन 14 दैट विल बी 1 अपॉन 2. सो द वैल्यू विल बी x इक्वल्स टू 1/2. इज दैट क्लियर. यस. नाउ अब हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं.
और अब जो मैं एग्जांपल्स करवाने जा रहा हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू आल्सो and it is also a part of competitions exam also because it is very important. Before solving this example मुझे एक फॉर्मूला आपको और बताना पड़ेगा. Actually these are two formulas, so हम इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. I am just going to write that one. A to the power m equals to A to the power n. अब अगर आपके पास कभी सिचुएशन ऐसा हो कि A to the power m equals to A to the power n, अगर हम इसको ध्यान से देखें, in that situation both base are same, दोनों का बेस सेम है. तो जब बेस सेम होगा, बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा, whenever both having the same base a और दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है, that means अगर बेस सेम है, in that situation पावर, एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस ये भी सेम होगा. so m इक्वल्स टू n. ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास बेस सेम होगा देन पावर शुड बी सेम. और इसी का रिवर्स, अगर आपके पास a टू द पावर m इक्वल्स टू b टू द पावर m है, इस सिचुएशन में अगर हम देखें पावर सेम है, दैट मींस बोथ आर m. इन दैट सिचुएशन बीच में इक्वल्स टू का साइन है. जब आपके पास इंडिसेस सेम है, पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो आपका बेस भी इक्वल होगा. देन a इक्वल्स टू b. यहाँ पर आपके पास बेस सेम था देन पावर इक्वल हुई, यहाँ पर आपके पास पावर सेम है देन बेस सेम होगा. रीजन बिहाइंड दैट कि बीच में आपके पास इक्वल्स टू का साइन है, तो ऐसी सिचुएशन में जब बेस सेम होगा देन पावर शुड बी इक्वल और पावर सेम होगा देन बेस शुड बी इक्वल. नाउ दिस क्वेश्चन, दिस फॉर्मूला वी कैन यूज दैट वन. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. आपको m की वैल्यू निकालनी है और आपके पास ये इक्वेशन गिवन है. अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इससे पहले आपने जो क्वेश्चंस किए थे वहां आपके पास जो डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न हमने इस क्वेश्चंस के डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन था पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना या पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना. सेकंड हमने सॉल्व किया था या सिंप्लीफाई किया था. फिर हमने इवैल्यूएट किया था. देन हमने नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड, पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया. नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें पावर कैलकुलेट करनी है. दैट मींस इट इज क्लियरली मेंशन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू आपको निकालनी है. विद दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट इन दैट फॉर्म. सो नाउ व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 5 टू द पावर m, इस 5 टू द पावर m और ये डिवाइड है, तो डोंट यू थिंक कि मैं इसे 5 टू द पावर -3 लिख सकता हूं. That means 5 to the power m upon 5 to the power -3 equals to 5 to the power 5. Is that clear? First of all, मैंने इस डिवाइड को अपॉन में लिखा, कोई भी रूल अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया. बट अब अगर देखें तो दोनों जगह 5 है और ये डिवीजन फॉर्म में है. हमारा सेकंड फॉर्मूला मेंशन होगा जब पावर से जब डिवीजन हो, बेस सेम हो, तो पावर शुड बी सब्ट्रैक्ट. तो अब हम लिखेंगे 5 to the power m माइनस और ये -3, 5 to the power 5. Is that clear? यहाँ ये डिवाइड की फॉर्म में है तो मैंने m -3 कर दिया. Now you know it very well. माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस. So m + 3 equals to 5 to the power 5. Now I told you last time कि अब हमें कैलकुलेट करना है m की वैल्यू और m पावर में है. तो जब भी पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास बेस सेम होंगे. दैट मींस ये आपके पास दोनों जगह 5 है. आई टोल्ड यू दोनों जगह जब सेम बेस होता है देन पावर शुड बी इक्वल. सेम फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल होगा. सो 5, so if a equals to b or a equals to m equals to a equals to n, then m equals to क्या होता है n. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमारे पास दोनों जगह बेस सेम है. अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इन बोथ आर 5 आर सेम, तो हमारा पावर इक्वल हो जाएगा. देन m + 3 equals to 5 होगा, प्लस का 3 वहां जाएगा. दैट मींस 5 - 3 equals to 2. So m equals to 2. In this situation our value of m will be 2. The next example is, by what number should 1 by to the power -1 be divided so that the quotient is -4 to the power whole power -1.
Now the thing is that it is purely just like a previous example, but thing is that वहां आपने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिवाइड होगा. अगेन आई एम टेलिंग, उस एग्जांपल में मल्टीप्लाई था और रिमेनिंग प्रोसेस था. यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया है. अदरवाइज द थिंग इज सेम, केवल आपको फर्स्ट स्टेप जो होगी दैट शुड बी डिफर. वहां आपने कंसीडर किया था कि x को आपने एक पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई किया था टू गेट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. यहाँ x में आपको कह रहा है what number should be divided so that the quotient is, that means x should be divided from that one to get the quotient minus 5 by 4. Now what should I think? That particular number, let 1 upon 2 to whole power minus 1 should be divided by x to get minus 5 upon 4 to the power minus 1. यानी आपको इस क्वेश्चन में ये मानना है कि इस नंबर में दैट मींस 1 upon 2 to the power minus 1 में हम x से डिवाइड करें to get the quotient this one. So now what should I do? I just write 1 upon 2 whole power minus 1 divided by x equals to minus 4 upon 4 whole power minus 1. Now again, सबसे पहले इस नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. वी नो इट वेरी वेल कि ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 upon 1 whole power 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू ये आपके पास आएगा 4 upon minus 5 whole power 1, बिकॉज ये जो नेगेटिव पावर है दैट विल कन्वर्ट इनटू ए पॉजिटिव पावर. नाउ व्हाट शुड आई डू? इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय x, क्योंकि 2 के अंदर x का डिवाइड देंगे, दैट विल बी 4 upon minus 5. इज दैट क्लियर? ये 2 है, डिवाइड बाय x हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ 4 upon minus 5. अब आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ x. सो वैल्यू ऑफ x यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, minus 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, सो 2 into minus 5 equals to 4x. नाउ दैट विल बी minus 10 और ये 4 upon में वापस इसके साथ नीचे आएगा, सो x will be minus 5 upon 2. अगर 2 से हम इसको reduce करें that will be minus 5 by 2. So that our answer will be x equals to minus 5 by 2. That means अगर 1 by 2 whole power minus 1 में minus 5 by 2 का divide दिया जाए, in that situation we can get the quotient, let's say minus 5 by 4 whole power minus 1. Is that clear?